Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Yes, Mataji, please. Hare जय जय Krishna, माता। Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you for an excellent class. Itna, got to understand about water ka significance. And pehle, you started with Bhagwan ka love for us and Amara insignificance. Itna, you beautifully described Adhyatmik Jagat ka and how it is self-illuminated because wahan to separate, light nahi chahiye and illumination becomes the Brahma Jyoti and छोटा सा ये material world है उसमें हम इतना insignificant हो so भगवान का significance especially भगवान का love हम पे and हम इतना insignificant है वो आपने establish किया बहुत अच्छी तरह प्रभु जी then यहाँ पूरा ये 4 verses importance of water के बारे में आपने बताया एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट सो आई एम अ लॉयर सो बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर जैसे आपने बताया प्रभुपाद जी ने इतना इज एक्सप्लेन्ड इट सो वेल मुझे ना ये डाउट ऑलवेज रहता है व्हाई इज इट दैट मटेरियल ये तो मटेरियली एजुकेटेड पीपल के भी इतनी अच्छी तरह इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड but how come this is not getting popularized and jo kuch text books mein likha hai and people become reading all that they become nastikvadi and all that as opposed to reading this because mujhe as I'm reading these chapters science bhi hai physics bhi hai chemistry bhi hai biology bhi hai itni अच्छी तरह and simple way में explain किया है यहाँ ये मूल या बेस रख के everything is established and explained in schools it will be very good अभी क्या हुआ है because everything has been explained in a different way particularly medically materially educated people उसको इस बात में लेके आना sometimes I feel is a little bit difficult and then अपने जिह्वा के taste के बारे में full all 4 verses have been talking about water मुझे ये point भी was very interesting taste तो एक ही है पर bifurcate या split हो जाता है because जिसके साथ वो mix होता है जिसके साथ उसका connection आ जाता है so अपने characteristics of water and उसका usefulness के बारे में भी with several examples आपने बताया एंड मुझे टेक अवे जैसे आपने बताया एवरी टाइम हम पानी को देखते हैं हमें भगवान कृष्ण को याद रखना चाहिए बिकॉज हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं सेम वे सब थिंग्स हम इस वर्ल्ड में देखते हैं तो it should remind us of the Lord. Then automatically, 24/7 हम भगवान को, याद में रख सकते हैं. And मुझे ये भी this thought that came to my mind um, everything behind everything भगवान है but everything has been bifurcated and split इसको सब merge करके because destruction में ऐसा ही होता है ना merge करके एक करके it takes back the qualities of the previous the previous element so ऐसा जाके जाके but we'll see ultimately ऊपर में we have the predominating deities Sankarshan, Vasudev, Anirudh and Pradyumnan. So in the sense, यहाँ सब has come out of consciousness, mind, intelligence, and I'm forgetting the other one. And ultimately, goes back to Krishna. एंड एक पॉइंट आप जो बताया वो भी बहुत अच्छा है कि अब जब हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं और वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस बाय रीडिंग भागवतम बाय फॉलोइंग ऑल दिस देन ऑटोमेटिकली जो कुछ मटेरियल रूल्स है यहाँ वी ऑटोमेटिकली फॉलो दैट एज वेल एंड बिकम अ गुड नागरिक थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। विजय माता जी, आप
लॉयर हैं और वेल एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी आप जैसे भक्त कृष्ण भावनामृत में बढ़ रहे हैं, यही एक हमको मतलब प्रसन्नता मिलती है हमको, कि बहुत अच्छे तरीके से आप लर्न भी करके आते हैं और आप मतलब एज भी आपकी काफ़ी है, लेकिन आप लॉयर भी हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आप कृष्ण भावनामृत को इतना सीरियस ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है माताजी। आप जैसे भक्तों से और लोग इंस्पायर होंगे कि जब इतने बड़े-बड़े लोग पढ़े लिखे कृष्ण भावना में जुड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते? थैंक यू माताजी, थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, but I joined too late, that's why मैं सोच रही हूँ ना, if everything happened a little bit earlier, maybe was not qualified at that point, but need everybody's blessings to progress and bring other people also in. जैसे मैंने कहा, ज़्यादा साइंस लोग ही है, कैसे, उन लोगों को यहाँ हम लेके आ सकते हैं, that's my, biggest, challenge possibly. हरे कृष्णा, प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। यस माताजी, लेट बट भगवान श्री कृष्ण का जो श्लोक है भगवत गीता का, नेहापि क्रमानाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, तो ये हमें काफ़ी संतुष्टि देता है कि कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी-सी भी भक्ति अगले जन्म में हमारे साथ बिल्कुल काम आएगी। तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी माताजी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत आपने पूरा इसका विश्लेषण किया। जब जल की चर्चा हो रही थी तो एक जैसे एक पॉइंट मेरे दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, विच इज जल का आपने सारे उपयोग बताए, लेकिन एक जो इसका उपयोग है वो है शुद्धिकरण हमारा। हम लोग जब कुछ अशुद्ध होते हैं तो हम लोग राइट। नहाते हैं, कुछ हाँ। लोग जो है हाथ धोने के लिए बांटते हैं, थोड़ा सा कुछ लग जाता है तो हाथ धोने के लिए बांट। सो ये भी जो है एक बहुत जल का महत्वपूर्ण अंग है कि वो हमको शुद्ध करता है। तो ये जस्ट एक दिमाग में आया, तो जस्ट हरे कृष्णा। इवन डेटी रूम में जाने से पहले भी जल को आचमन के लिए जल की आवश्यकता रहती है। करेक्ट करेक्ट। बिना उसके हम लोग, तो ये हाँ। शुद्धिकरण जो है, मतलब ये स्ट्रेस नहीं है कि जल हमको शुद्ध करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। और सिर्फ नहा के भी नहीं चलता, जल से हम लोग फिर जब आचमन करते हैं उसको, तो और ज्यादा फिर हम लोग जो है अंदर से भी, ये तो बाहर से हम लोग करता है, लेकिन आचमन जब करते हैं तो अंदर से शुद्ध होते हैं। राइट राइट प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुंजेश्वर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमेशा की तरह बहुत सरल करके समझाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं ना, ये सब जो भगवान की शक्तियां है उनका बहुत सही से उपयोग करना चाहिए, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कितने बार डांटा है ना सबको कि लाइट्स का उपयोग अच्छे से करो। ऐसे हम लोग खुद ही भगवान की शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, इसलिए पानी की कमी होती है। जैसे कि अभी राजस्थान में तो पानी की पहले से कमी है, लेकिन पंजाब में इतना सारा पानी है, इतना सारा पानी है, लेकिन पीने के लायक नहीं है। वो खुद ने ही उन्होंने सब डाल के खेतियों में, तो पूरा पानी वो खराब आता है, उधर पीने का पानी बहुत कम है। इसी तरह भगवान के हम प्रेम के विषय में बात करेंगे कि भगवान कितने प्रेम करते हैं सबसे। तो किसी ने पूछा तो ये भगवान जो है समुद्र में इतना सारा पानी होता है, वो सब भाप बन के ऊपर जाता है, फिर पानी बारिश बरसाते, तो सब जगह बारिश बरसाते है तो ठीक है, लेकिन समुद्र में क्यों बरसाते, उधर तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन भगवान को तो चिंता रहती है ना, उधर भी एक सीपी रहती है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी पीती है, उससे मोती आते हैं। तो भगवान का वो प्रेम है, हर एक जीव को उसका देते हैं प्रेम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी आपने कनेक्ट किया है कि समुद्र में भी बारिश भगवान करते हैं, लेकिन वो भी उन लोग उन जीवों के लिए जिनको पहला पानी पी करके वो मोती बनते हैं। राइट माता जी, देखो भगवान की क्या क्या व्यवस्था है। अगर हम भगवान पे विचार करने जाएं तो हमको हमारी तुच्छता का अनुभव होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम केवल खा पी करके घूम सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भगवान की व्यवस्था कहाँ कहाँ तक बैठी हुई है, और उसके बावजूद भगवान विचलित नहीं होते हैं।
सबका ध्यान रखते हैं। कितना अच्छा पॉइंट बताया कुंजेश्वरी माता जी ने। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सूरत माधव प्रभु जी की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु, आप जब बता रहे थे ना कि भगवान किस तरह से व्यवस्था करते हैं, तो मुझे याद है कि एक बार याद है दुबई में वो आर्टिफिशियल रेन बनाया था। तो कितना उन्होंने मेहनत किया केवल कुछ 15-20 मिनट के बारिश करने के लिए उन्होंने। तो और भगवान यहाँ पे 4-4 महीने 5-5 महीने उनकी ऐसी व्यवस्था की गई है कि बिना कोई मेहनत के इतना सुंदर वो भी प्योर पानी आता है। और यहाँ पे उन्होंने इतना सारा पैसा लगा के आर्टिफिशियल रेन, मतलब उनको कुछ उपलब्धि चाहिए थी कि हम लोगों ने कुछ डिस्कवर किया है, वो भी 15 मिनट में। और पूरा पानी ऐसा था, मतलब इट वाज ऑल कार्बन से, मतलब पूरा जिसने उसमें जो भीगे हैं उनको कितना तकलीफ हुआ। और यहाँ भगवान इतना सुंदर व्यवस्था है, जो पानी आता है इतना पीने लायक। और तो ये है भगवान का। हम लोग कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। वो केवल अपना अहंकार के कारण हम अलग अलग चीज ट्राई करते रहते हैं। तो भगवान बिना पैसे, बिना जस्ट इच्छा से आराम से ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। और हम मनुष्य भगवान की बराबरी करने के चक्कर में सब बिगाड़ देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हकीकत में तो यही है कि इस संसार में जो भी जीव आए हैं वो अपने को भगवान की बराबरी करने के लिए और अपने आप को भगवान बनाने के लिए ही आए हैं। और वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा करते रहते हैं जिससे उनको लगे कि यहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि समय कैसे बीतता जा रहा है और एक समय आएगा कि काल हमारे आगे आके खड़ा हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे राधा कुंज महाराज जी बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपना वॉशरूम, अपने पॉटी जाने का भी उसको होश नहीं रहता है, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति को करना रहता है। और जब दूसरा वो वही व्यक्ति जब एजेड हो जाता है तो भी उसको एक व्यक्ति हाथ पकड़ के वॉशरूम तक ले जाया जाता है ना। लेकिन बीच का जो जवानी का समय रहता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ। तो वो शुरू में भगवानता उनकी खत्म हो जाती है और अंत में उनका भगवान खत्म हो जाती है। जवानी में उनके अंदर भगवान का गुण उनके अंदर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हम देखें बचपन से 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया और एजेड तो वो होते ही नहीं है। तो हमको कंपेरिजन भगवान से इनसे करते रहे तो हमको अपनी तुच्छता का अनुभव हमेशा होता रहेगा। अगर हम कभी भी कंपेरिजन करते रहे ना तो हमारा तुच्छता का अनुभव हमारे लिए होता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे बताया आपने दुबई का। कुंजेश्वरी माता जी कुछ और मंथन करना चाहती हैं? जी, जी प्रभु जी। अभी हमारे इस्कॉन के अलग-अलग क्षेत्र में जो बन रहा है ना सब छोटे-छोटे विलेज, और वो कितने सब मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहाँ पर लाइट भी नहीं है और कुछ भी बाहर का ऐसे कुछ भी नहीं है जो सौर ऊर्जा पे चलता है और सब दिया है। और एक इसमें भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का है, एक भक्ति विकास महाराज का, दोनों का भी देखा अलग-अलग वो विलेज में। पूरे वैदिक तरीके से है। वहाँ पर बाहर से पानी भी नहीं है, अपना पानी भी नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं। वहां पर सब भक्तों ने बनाया हुआ है और वहां पर इतना सारा बड़ा पानी बह रहा है ना, जो अभी 4 महीने जो बारिश गिरी ना उसका उन्होंने जमा करके रखा है। तो जैसे इधर भागवतम में लिखा है भगवान बहुत सारा देते लेकिन हम संभाल के नहीं रखते, वही सब महाराज लोगों ने किया कि हम सब कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे विलेज बनाए। वो एक बार देखेंगे ना तो समझ में आता है कि किसी भी और बाहर की चीज की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है ना कि सिर्फ आपके पास गाय होनी चाहिए और खेत होना चाहिए, इससे आपका उदर निर्वाह बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से वो विलेज है, वो सबको देखने चाहिए, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम जयपुर वाले भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जयपुर के पास में एक सीकर है, वहां पर रेवासा नाम से एक मतलब धाम ही बताया गया उसको। वहां पर हमको 200 एकड़ जमीन मतलब किसी ने दान में दी है, तो उसको अभी हमने नाम दिया है जगन्नाथ धाम विलेज। तो जैसा आपने बताया जैसा बॉम्बे में चल रहा है और भक्ति विकास समाज का सेलम में चल रहा है, तो वैसा ही यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार हो रहा है जगन्नाथ धाम विलेज के नाम से। तो वहां पर भी 5,000 करोड़ लीटर वाटर
इकट्ठा करने की शक्ति के लिए एक टैंक बनाया गया, जहाँ से चारों तरफ से पानी वहीं आकर के गिरेगा और खेती-बाड़ी होगी वहाँ पर और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो हम भी अछूते नहीं हैं इन गाँव से, बहुत जल्दी यहाँ पर भी शिला प्रभुपाद जी का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। हरे कृष्णा। और ये सारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ खत्म हो रहे हैं, जैसे हाँ। पानी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की चिंता है, आगे कैसे होगा? तो हुँ। ऐसे सब जो निर्भरता है बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस तरह के वातावरण में तैयार करें, ताकि हम लोग वहाँ रह सकें। तो बहुत ज़रूरी है ये, और यही जो है नॉर्मल जो है अपना आर्टिफिशियली ये सब बना के रखे हैं, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो भगवतन की जय।